Okay, so all of you can note this heading: nature of electromagnetic waves. Okay, so that's very important topic. So nature of electromagnetic waves. Okay. Okay. So what we have हमने तो क्या क्या देखा हमने देखा कि Maxwell what did he do? What did he do? He gave the idea of EM waves. ठीक है? So Maxwell gave the idea of EM waves and and Hertz, J.C. Bose, all these scientists and other physicists, they experimentally demonstrated few things. They experimentally demonstrated few things. Demonstrated what? So we will discuss that. Okay. So first thing that was demonstrated was electromagnetic waves. Electromagnetic waves are transverse in nature. Okay. Electromagnetic waves are transverse in nature. They are transverse in nature. That means what? What do you mean by transverse in nature? That means, if they are propagating like this, then the electric field vector is perpendicular to the direction, and the magnetic field vector is also perpendicular to the direction of propagation. That is the meaning of transverse. Okay, that is the meaning of transverse in nature. So what we want to say? We want to say that with electric field and magnetic field perpendicular to each other, and sinusoidally varying with time. And sinusoidally varying with time, right? It's a time varying function. Electric field function वो भी आएगा आपका E naught sin omega t plus phi 1. Magnetic field भी B naught sin omega t plus. We'll discuss about this in more detail. अभी जैसे मैं बता रहा हूँ आपको sinusoidal function का मतलब क्या है, ठीक है? So sinusoidally varying with time and wave propagates in direction perpendicular to them. And wave propagates in direction normal to both electric field and magnetic field. Or along the direction of the cross product, along the direction of the cross product of E and B. So this is very important. Huh? Along the direction of the cross product of electric field and magnetic field. That's very important. Okay. So please note down till this point. यहाँ तक सब लोग note down करो. Okay. So let us remove this from here. So आपको ये समझ में आया, right? तो हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को लेते हैं E नॉट साइन kx minus omega t j का,
और b को लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड को b नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी के क्या। तो ये अंडरस्टूड है जब हम बोलते हैं kx माइनस ओमेगा टी, तो इसका मतलब क्या है? द वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग x एक्सिस। द वेव इज, ये पढ़ा ना आपने साउंड वेव और स्ट्रिंग वेव में, द वेव सर। इज propagating along positive x-axis, propagating along positive x-axis। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलॉन्ग है? जे के अलॉन्ग। मैग्नेटिक फील्ड ये, आप खुद चेक कर लो ई क्रॉस बी किसके अलॉन्ग आएगा। ई क्रॉस बी आप चेक कर लो किसके अलॉन्ग आएगा, वो आएगा जे क्रॉस के अलॉन्ग। और जे क्रॉस के क्या होता है? आई, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। समझ में आ रहा है? तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। हाँ सर, आ रहा है। तो कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग लिया हमने, मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग। और जो प्रोपगेशन है, प्रोपगेशन वो थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट से मिलता है। प्रोपगेशन मिलता है, प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव्स वो आपको मिलता है ई क्रॉस बी से। जब आप ई क्रॉस बी करोगे तो वो आई कैप के अलॉन्ग है। तो इसलिए बोला जाता है प्रोपगेशन इज परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये था आपका सेकेंड पॉइंट का एक्सप्लेनेशन, तो इसको आप नोट डाउन कर लो प्लीज। ओके, तो सबने लिख लिया आई थिंक। ये था फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है रिलेशन इन, हम लोग ये डिराइव करने वाले हैं, आप चिंता मत करो। पहले मैं जस्ट बता रहा हूं आपको, पॉइंट बता रहा हूं। द रिलेशन इन amplitudes, the relation in amplitudes of electric field and magnetic field in EM wave is given by, मतलब E नॉट और B नॉट के बीच का रिलेशन, ठीक है। दैट इज E नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। एंड थर्ड पॉइंट इज द स्पीड ऑफ EM waves in free space is equal to, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, स्पीड ऑफ EM waves in free space is equal to 1 by अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू क्या है? परमिएबिलिटी, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी। ठीक है, वो वैल्यूज तो पता ही है आपको। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करते हो तो सी का वैल्यू आता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, राइट। आपको पता है म्यू नॉट का वैल्यू कितना है? म्यू नॉट का वैल्यू है 4 पाई × 10⁻⁷ और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है? 8.854 × 10⁻⁻, माइनस कितना है? 9। 12. Okay, good. So please note down till this point, everyone. So we'll now discuss the transverse nature of EM waves. Okay. So first, let us make a diagram here. एक diagram बनाते हैं। तो हम लोग इस तरह से यहाँ पे ले रहे हैं। This is X, Y, Z axis will take. ओके, तो यहाँ पे मैं इस तरह से दे रहा हूँ। ये हो गया अपना y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, और ये मैं ले रहा हूँ z एक्सिस। ठीक है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ओके, ठीक है, ओके, ओके। So this is the x axis, this is the y axis, and this is the z axis. Okay, so जो EM waves है वो इधर प्रोपोगेट कर रहा है x एक्सिस के डायरेक्शन में EM waves, ऐसा हमने assume कर लिया है। ठीक है, we have assumed like this. Okay, so let us write down हम लोग यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं। If we consider EM waves
traveling along x-axis, traveling along x-axis. ठीक है, मतलब क्या? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ x and t. Okay, and if we consider Ex, Ey and Ez as the components, of field vector, then for a cuboid surface, so we will consider a cuboid surface here. For a cuboid surface, तो हम लोग यहाँ पे cuboid consider करेंगे, मैं बताता हूँ आपको कैसे. So let us consider a cuboid surface. So ठीक है, सब लोग देखो ध्यान से. तो हम लोग यहाँ पे ये एक क्यूबॉइड बना रहे हैं, मेकिंग अ क्यूबॉइड. Okay. So we want to find out the flux through that cuboid, and with the help of that, we'll prove the transverse nature of EMF. Okay, that's the goal. We want to prove the transverse nature of EMF. तो मैंने यहाँ पे एक क्यूबॉइड कंसीडर कर लिया है. ठीक है, आप कंसीडर क्यूबॉइड. Okay, so we can name it. This is O, this is A, this is B, this is C. Okay, O A B C हो गया. अब इसको D ले लेते हैं. ये यहाँ पे भी एक लाइन है D, इसको ले लेते हैं E, ये ले लेते हैं F और ये ले लेते हैं. ठीक है, ओके. तो जो हमने यहाँ पे किया है, क्यूबॉइड सरफेस कंसीडर किया है, तो क्या होगा? Then for a cuboid surface as shown in figure, what will happen? By applying Gauss theorem, हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं कि जो नेट फ्लक्स है वो जीरो होगा. तो नेट फ्लक्स जीरो क्यों होगा? क्योंकि चार्ज एनक्लोज्ड इज जीरो. फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट. लेकिन यहाँ तो चार्ज एनक्लोज्ड है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ वेव है, सिर्फ वेव एग्जिस्ट कर रहा है. चार्ज एनक्लोज्ड कितना है? जीरो. अगर चार्ज एनक्लोज्ड जीरो है तो फ्लक्स कितना आएगा? जीरो आएगा. तो यहाँ पे हम ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ट्रांसवर्स नेचर हम लोग प्रूव करने वाले हैं. ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लो प्लीज. तो इस पॉइंट तक समझ में आया ना आप लोगों को? अच्छा, अब देखो आप यहाँ पे जो है, फिर हम लोग फ्लक्स कैलकुलेशन करते हैं. ये जो यहाँ पे 6 सरफेसेस है, क्यूबॉइड में कितने सरफेसेस होते हैं? हाउ मेनी सरफेसेस आर देयर इन द क्यूबॉइड? हेलो, देयर आर 6 सरफेसेस, राइट? क्यूबॉइड में कितने सरफेसेस होते हैं? 6. 6. यस. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखिए आप इस जगह पे क्या होने वाला है. ये जो आपको हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी. ठीक है ना, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टाइम. ठीक है, इट्स वेरिंग विद एक्स. तो इट्स वेरिंग विद एक्स, but it is not varying with time y and z, but it is not varying, is not varying with what? With y and z, because ऐसा ही हमने सिचुएशन ले रखा है. ठीक है,
तो इसका मतलब अगर हम बात करें वाई एक्सिस की बात करें तो ये जो ऊपर का आपको दिख रहा है ए बी ई एफ, ये जो पार्ट दिख रहा है ऊपर वाला, और जो नीचे वाला दिख रहा है ओ डी सी जी, ओ डी सी जी जो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का जो फ्लक्स है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं कर रहा है बाई और वाई के अलोंग, वो वेरी नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग, तो इधर से जो फ्लक्स होगा और इधर से जो फ्लक्स होगा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है, राइट, ओके। तो इधर से जो फ्लक्स है वो पॉजिटिव, क्योंकि उसका एरिया वेक्टर ऊपर होगा, इसका एरिया वेक्टर ऊपर होगा इस सरफेस का, और इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो नीचे है। तो अगर ऊपर वाला फ्लक्स आप पॉजिटिव लोगे तो नीचे वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि फ्लक्स जो है वो ए बी ई एफ के थ्रू जो फ्लक्स है इट विल बी नेगेटिव ऑफ द फ्लक्स थ्रू ओ डी सी जी। ये नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव कर दो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखोगे, वैसे ही अगर आप देखोगे जेड एक्सिस की तरफ, तो जेड एक्सिस के तरफ वाला कौन सा है, तो उसको हम दूसरा कलर देते हैं, उसको हम लोग येलो कलर देते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ये वाला देखो, ये जो आप सरफेस देख रहे हो ना इसके थ्रू जाएगा जेड एक्सिस वाला फ्लक्स, और पीछे भी ऐसा एक सरफेस है, पीछे भी है, तो मैं उसको भी ये करता हूँ। तो ये जो दो सरफेस हमने बनाया, समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है। तो ये जो दो सरफेस है उनके हाँ सर। थ्रू, हाँ उनके थ्रू जो फ्लक्स जाएगा वो है आपका जेड वाला। तो वो भी क्या होगा, वो भी वेरी नहीं कर रहा टाइम के साथ, वेरी नहीं कर रहा, अगर फील्ड नहीं वेरी कर रहा है, जेड के साथ नहीं वेरी कर रहा है, तो फ्लक्स सेम होगा, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स जो होगा वो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ई वाई इंटू डी एस, लेकिन ई वाई तो कांस्टेंट है। वैसे ही जो फ्लक्स होगा अपना ये पीछे वाला सरफेस कौन सा है, ए ई ओ डी, पीछे वाला सरफेस, इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा इट विल बी नेगेटिव ऑफ द फ्लक्स जो आगे वाला सरफेस होगा, यानी बी एफ सी जी, ठीक है। तो ये हमने एक इक्वेशन बना दिया, क्यों, क्योंकि ई जेड कॉन्स्टेंट है, वेरी नहीं कर रहा है, राइट। ई वाई और ई जेड जो है वो दोनों क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो ये इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ दो सरफेस बच गए, कौन से दो बच गए, जो दो बच गए उनको हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक है, उनको हम ब्लैक कर देते हैं। तो एक ये बच गया अपने सामने वाला, ठीक है, ओके, ये वाला बच गया, और एक ये वाला बच गया, तो उसका अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप पहले यहां तक नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करिए। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे जो हमारे दो सरफेस बच गए, ठीक है, कौन से दो सरफेस बच गए, एक तो सामने वाला बच गया AOBC, और एक अपने पास बच गया पीछे वाला जो है EFBG, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, ओके, सो लेट अस डिस्कस दैट। तो यहाँ पे हम लोग जो है इस पॉइंट को मान लेते हैं कुछ x1, और ये जो पॉइंट है अपना x एक्सिस का इसको हम लोग मान लेते हैं x2, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ x2, ठीक है, एक हो गया x1, एक हो गया x2, ओके। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि आपने देखा ये चार सरफेस का तो जीरो है, राइट, ये चार सरफेस जो है जो हमने पहले दिखाए थे आपको वो तो जीरो है, टोटल फ्लक्स भी जीरो है, टोटल फ्लक्स जो है वो क्यूबॉइड का कितना है, जीरो है, ठीक है। और क्यूबॉइड का मतलब क्या है, उसमें टोटल 6 सरफेसेस है, फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस, थर्ड सरफेस, फोर्थ सरफेस, फिफ्थ सरफेस, ये सबका सम भी जीरो होना चाहिए टोटल सरफेस। इसमें हमने चार का तो जीरो प्रूव कर दिया, राइट, जो वाई और जेड के अलॉन्ग है। अब बच गया आपका एक्स के अलॉन्ग वाला, ठीक है, जो आपका एक्स के अलॉन्ग है वो बच गया। तो एक्स के अलॉन्ग ये दो बचे, ए बी ओ सी और ये। तो ए बी ओ सी जो है, ए बी ओ सी का एरिया वेक्टर ये होगा, एरिया वेक्टर, और ये जो इधर है इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, ठीक है। तो एक का फ्लक्स पॉजिटिव आएगा, एक का फ्लक्स नेगेटिव आएगा, ठीक है। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे फ्लक्स थ्रू ई एफ डी जी, ठीक है, मतलब आगे वाला, एंड फ्लक्स थ्रू ओ ए बी सी, यानी इधर वाला पहले वाला, ये भी जीरो होना चाहिए क्योंकि फ्लक्स थ्रू द क्यूबॉइड इज जीरो, दिस आल्सो हैज टू बी जीरो। अब फ्लक्स थ्रू
EFDC उसका एरिया वेक्टर आ गया, फ्लक्स होता है E डॉट ds, तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट x2, इलेक्ट्रिक फील्ड एट x2 E डॉट ds यानी E डॉट s हो जाएगा। और फ्लक्स इधर क्या होगा, फ्लक्स इधर नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पे फील्ड फील्ड आगे है और एरिया वेक्टर पीछे है, तो एंगल आएगा 180 E डॉट ds E डॉट s, तो वो हो जाएगा cos 180, तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट x1 cos 180 की वजह से ये साइन आएगा माइनस, ये सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अब यहाँ से हम लोग क्या समझ में आया, यहाँ से हम लोगों को ये समझ में आया कि ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन हो जाएगा S कॉमन और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा EX2 माइनस EX1, इलेक्ट्रिक फील्ड एट x2 इलेक्ट्रिक फील्ड एट x1, ठीक है। तो हमें ये दिखाना है, एक्चुअली हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ये दोनों जीरो हो। जब ये दोनों जीरो होंगे तभी क्या होगा, तभी वो प्रूव हो जाएगा कि ट्रांसवर्स है। तो यहाँ से आएगा आपका EX2 इज इक्वल टू EX1, ठीक है, बट दिस इज नॉट पॉसिबल because the field is not static, okay, field is not static, okay. So what is possible, EX2 is equal to EX1 is equal to 0। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट अलोंग x, इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, मतलब दिस प्रूव्स द ट्रांसवर्स नेचर। ठीक है, अभी ये मीटिंग खत्म हो रहा है, वी विल अगेन कनेक्ट, तो मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, ओके। तो मैंने ये पेज सेव किया है, आई विल सेंड यू इन द ग्रुप, डोंट वरी, ओके।